Namaskar everyone. Welcome back to the beautiful platform of Adhyalay. Today we are going to talk about meiosis 1, right? Till last class we had talked about prophase 1. I hope you all remember it. Yes? Prophase 1 mein what all things we had discussed? Do you all remember? Can we have a small recall? Can we have a small recap? Let's have a check. है ना? Let me see how many of you remember all the processes. So prophase 1 we were learning. You all remember it, no? Yes, जहाँ भी हो, do the movements, right? Nod your head. Yes. So prophase 1 में we had discussed कि इसमें कितने phases होते हैं? LZPD square. इतने तरह के event होते हैं, right? Depending on what all events, राइट उसके अकॉर्डिंग हमने उसको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में डिवाइड करा, राइट? चलो, तो कौन बताएगा मुझे साइनैप्सिस किस में होता है? वेयर डू यू फाइंड साइनैप्सिस? इज इट पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन? कहाँ होता है? मैसेज मी फास्ट इन द को-होस्ट अकाउंट. आपको मेरे को टेक्स्ट करना है और आई विल गिव यू ऑप्शंस. हाँ, Swati has given the answer. Others? Synapses, which is pairing of homologous chromosomes, take place in zygote, right? That is what we had discussed. Yes? Then where do you see synaptonymal complex? Where do you see synaptonymal complex? Is it leptotene, zygotine, pachytine, diplotene, dikinesis? It is zygotine, right? You get synaptonymal complex. Now going forward, in pachytine, do you get to see synaptonymal complex? Think and tell me. क्या आपको पैकाइटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मिलता है? सोच के बताना. Is the same synaptonymal complex get followed in pachytine as well? Think and tell me. Yes, obviously, because obviously it will be followed, because in pachytine also your homologous chromosome will be together. So as long as your homologous pair of chromosomes are together, synaptonymal complex will be there, right? So in zygote the formation happens. Till pachytine it will be there. Is it clear? Till pachytine it will be there. Then what happens in diplotene? In diplotene the synaptonymal complex get dissolves, right? D, diplotene. Why? Because the homologous pair of chromosomes starts to move away. So when they start to move away, there is only one point where they are still attached, right? And from here we have to discuss. Yes? So last class we had discussed up to pachytine, right? Pachytine crossing over happens. Or you can also relate it with what? Recombination, right? Recombination happens in the non-sister chromatid of the homologous pair of chromosomes. This is clear now? We had discussed it yesterday. Okay, now what all enzymes were there? What all set of enzymes were there which were helping in the recombination process? क्या थे वो? जल्दी बताओ. What were they which were helping in the recombination process? क्या थे? What were those set of enzyme called as? Or what are they called as? बोलो जल्दी. Starts with the letter R, which helps in the process of recombination. Yes, Anusha. Perfect, Swati. It is what? Recombinase. Recombinase. I hope it is clear. है ना? चलो. ये कौन बताएगा मुझे? Who will tell me this? अगर मैंने bivalent का नाम लिया, the moment I tell you bivalent, how many chromosomes are found in bivalent? How many chromosomes do you get in a bivalent? Anusha has answered. Others?
How many chromosomes do you get in a bivalent? Na, Swati, it is wrong. You get 2 chromosomes, my dear. 2 chromosome. ठीक है? Now tell me, how many yes, Raj, perfect. How many centromere do you get in a bivalent? How many centromere do you get in a bivalent? Jaldi. Perfect. Obviously, na. जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, राइट? जितने क्रोमोसोम उतने सेंट्रोमियर. Yes? So that is the concept of bivalent. Now my question to you is tetrad. How many chromosomes do you get in one tetrad? कौन बताएगा? How many chromosomes do you get in one tetrad? अनुषा, गलत नहीं करना है. How many chromosomes do you get in one tetrad? सब गलत कर रहे हो. How many chromosomes do you get in one tetrad? You get 2 chromosomes. Right? Swati is right. Only Swati is right. You get 2 chromosomes in one tetrad. Right? It is nothing but this, no. It is nothing but this pair of homologous chromosomes. So how many chromosomes are you getting? 2. If I ask you, how many chromatids do you get in a tetrad? कितने chromatid होते हैं in one tetrad? Then your answer would be, ma'am, there are 4 chromatids and that is the reason why it is called as tetrad. सेम ही गलती कर रहे हो ना? कल भी यही किया, आज भी यही कर रहे हो. फिर क्या ही पॉइंट हुआ मेरे पढ़ाने का? बोलो राज एंड स्वाति. So in a tetrad you have what? You still have 2 chromosomes, my dear, but the number of chromatid is 4 and that is the reason why we call it as a tetrad. And ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कब तक देखने को मिलेगा? पैकाइटिन में, because till पैकाइटिन they are together. So in पैकाइटिन you can have tetrad because they will be together, right? Homologous pair of chromosomes will be together. Yes. अब आज की क्लास शुरू करें. So we will now start with diplotin. I hope सब कुछ clear है यहाँ तक. Yes. So beginning with diplotin. D for diplotin. तो डिप्लोटीन में क्या होगा? जो अब तक नहीं हुआ वो होगा. तो पैकाइटिन में क्या था? वो साथ साथ थे, राइट? दे वर एक्सचेंजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल. नाउ इन डिप्लोटीन दे विल स्टार्ट मूविंग अवे. 2 फ्रेंड्स थे ना? कौन से 2 फ्रेंड्स थे? होमोलोगस क्रोमोसोम जिनमें जीन एक जैसा था, राइट? दे वर हैविंग द सेम टाइप ऑफ जीन located at the same locus. That's why you call them as homologous chromosome, right? So वो पेयर में थे, 2 फ्रेंड्स साथ साथ थे, homologous chromosome. Now it is time to get separated. Now the homologous chromosomes start to separate. But till when? Still there will be one point of attachment. Though they are trying to move away, but there will be one point of attachment, and that point of attachment will be the point where they did crossing over. So at the locus, at the place where they did crossing over, except that all the parts will be separated. So can I draw something like this? Just check it out. This is your replicated chromosome, right? That is why I am making 2 arms, because it has undergone through S phase, right? And that's why I am making 2 arms, right? So they are trying to move away. They are trying to move away, but still there is one point of attachment over here. And that point of attachment is showing what? That this is the place where crossing over took place. This is the location where crossing over took place. Now you carefully observe this. Hana? Just try to draw a dotted line in this shape. You will get an X kind of shape. You will get an X kind of shape, and this X kind of shape is chiasmata.
This X-shaped structure which you get in diplotin, that is called as chiasmata. है ना? They are trying to move away but still not able to move away. Why? Because here they had crossing over. So this X-shaped structure which they are getting in the diplotin stage is called as chiasmata. I hope you got it. Got it right? This is your chiasmata. Cool? X-shaped structure, chiasmata. Now, since they are moving away now, what will happen to synaptonymal complex? Will it still be there? No, right? Because it is moving away. So obviously synaptonymal complex will be dissolved. So in diplotin what will happen? Dissolution of synaptonymal complex, because भाई साहब अब वो दूर जा रहे हैं तो कहाँ से मिलेंगे वे साथ साथ? You will not get to see this synaptonymal complex, right? तो डिसोल्यूशन हो गया, खेल खत्म. अब सुनो, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज क्या होता है. विच वन इज द लॉन्गेस्ट फेज? क्या पढ़ाया था? प्रोफेज 1 का लॉन्गेस्ट फेज कौन था? आंसर इट. वॉज इट लेप्टोटीन? वॉज इट जाइगोटिन? वॉज इट पैकाइटिन? क्या था? कहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज होता है? सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कहाँ हो रहा है? In Pachytene, right? So obviously in Pachytene you say that is the longest phase of prophase 1. Why? Because there actually you have the exchange of genetic material. Is that clear? Okay. So Pachytene is ideally the longest phase, but you know, in some vertebrates the oocytes can last for months or years. In which phase? In diplotin phase. In some of the oocytes of vertebrates, the oocyte can be in the stage of diplotin for months and years. The best example I can tell you is of human beings, right? In human beings in class 12, you will be learning, right? That when gametogenesis happens, right? When formation of gamete happens, in case of female, human female, what happens? Consider two cases. Pehla case, case 1, the baby is in mother's womb. The female baby is in the mother's womb. So that time gametogenesis is starting. ठीक है? Ovary, reproductive organ, right? In the ovary they have what? Oogonia, right? Oogonia, they are the reproductive cells. These oogonia, which are the reproductive cells, it will undergo meiosis to make female gamete. Okay, so this oogonia, first of all, you know, gets matured and form what? Oocyte. This forms what? Oocyte. Primary oocyte we say. Those who are in 11th, you will not understand it much. But when you go to 12th, you will understand it. Okay? So whenever gametogenesis happens, you have some reproductive cells which will undergo meiosis. Okay? So gametogenesis you can see now. Genesis matlab formation of gamete. So whenever there is formation of gamete, you need to reduce the chromosome number. And what is the process? To reduce the chromosome number? Meiosis. So what process it will be going through? Meiosis. So in the ovary, you have oogonia cells that will mature, differentiate into primary oocyte. And now this cell will start meiosis. ये क्या start करेगा? Meiosis 1 start करेगा. But पता है, meiosis 1 start तो कर देगा, but it will not complete meiosis 1. ये meiosis 1 कभी complete नहीं करेगा. The baby will take birth, you know, the baby will take birth, the girl baby will take birth, and this oocyte will be arrested, एकदम jail में बंद होगा. You know in which stage of the cell cycle? Diplotin. इसलिए मैं बोल रही हूँ
किसी किसी वर्टिब्रेट का जो oocyte होता है that can be arrested in diplotin stage for months or years. तो आप जब बर्थ लिए ना, तो आपका जो oocyte है वो कौन से स्टेज में अरेस्टेड है? वो डिप्लोटीन में अरेस्टेड है। मतलब क्या वो मियोसिस 1 कंप्लीट किया? नहीं, वो तो अभी तक डिप्लोटीन में ही है। उसने डाइकाइनेसिस नहीं किया, मेटाफेज 1 नहीं किया, एनाफेज 1 नहीं किया, टीलोफेज 1 नहीं किया। तो आपका oocyte डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया। आप पूछोगे मैम कब तक ऐसा रहेगा? जब तक प्यूबर्टी नहीं रीच हो जाए, राइट? व्हेन अ गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी, तब जाके मियोसिस 1 कंप्लीट होता है एंड देन ओवुलेशन वगैरह फॉर्म होता है एंड देन द गर्ल स्टार्ट्स हैविंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना? जब आप प्यूबर्टी अटेन करते हो उसके बाद ही आपका मेंस्ट्रुएशन होता है। तो देख लो, आपने जब जन्म लिया एंड आपका प्यूबर्टी एज आया, कितने दिन का डिफरेंस है? क्या दिन का डिफरेंस है या साल का डिफरेंस है? सोच लो। एक्चुअली बहुत साल का डिफरेंस है ना, राइट? तो सोच लो उतने साल तक हमारे बॉडी में हमारा oocyte कौन से स्टेज में फंसा हुआ था? डिप्लोटीन में। तो देखो, दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका क्या कि विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अगर वो मियोसिस 1 नहीं बोलते फिर भी आपको अंडरस्टूड ये समझना होगा कि दैट इट इज मियोसिस 1, क्योंकि प्रोफेज के बाद 1 लगा है ना। सो इट इज टेलिंग यू कि इट इज अबाउट मियोसिस 1, राइट? तो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में सबसे लॉन्गेस्ट फेज क्या है? पैकाइटिन, क्योंकि वहां एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। नाउ अगर वो पर्टिकुलरली पूछना चाहें आपसे कि अपार्ट फ्रॉम पैकाइटिन क्या कोई ऐसा फेज है जो मंथ मंथ सालों साल चल सकता है? बिल्कुल, एंड दैट इज डिप्लोटीन। ठीक है? सो इन डिप्लोटीन स्टेज सम ऑफ द oocytes ऑफ द वर्टिब्रेट्स कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, है ना? उनको बहुत अच्छा लगता है डिप्लोटीन में रहने में। कूल। सो दैट इज दैट, एंड इसको कोई भूलेगा नहीं, ठीक है? सो इन डिप्लोटीन व्हाट इज हैपनिंग? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरा खत्म हो रहा है, वो दूर जा रहे हैं, बस एक जगह अभी भी जुड़े हुए हैं एंड दैट मेक्स एक्स शेप स्ट्रक्चर। जहां जुड़े हुए हैं वो एक्चुअली क्या शो करता है कि दैट इज द पॉइंट वेयर दे हैड क्रॉसिंग ओवर एंड दैट इज कॉल्ड एज क्याज्माटा। कूल। इन जनरल आइडियल केस में क्या होता है? पैकाइटिन सबसे लंबा फेज होता है, बट डिप्लोटीन भी कभी कभी कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में इट कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। कूल। इज इट क्लियर अप टू हियर? प्लीज क्लिक ऑन यस इफ इट इज क्लियर। जल्दी से यस पे क्लिक करेंगे अगर समझ आ गया तो, राइट? सो इट इज अनुषा ओनली क्लिकिंग ऑन यस। अदर्स यू नो हाउ टू रेस्पॉन्ड। पार्टिसिपेंट पे क्लिक करो, क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट, आपको यस नो ऑप्शंस दिखेंगे, है ना? यस, यू हैव गॉट इट। गुड। सो दैट इज दैट। नाउ द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज डायकाइनेसिस, राइट? अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, राइट? क्या होगा? क्या अब वो दूर जा रहे थे ना भाई, कभी ना कभी तो सेपरेट हो गए ना। कितना पास रहोगे, कभी तो सेपरेट होना पड़ेगा। तो फाइनली आपका क्याज्माटा का भी कहानी खत्म हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा विल टेक प्लेस इन डाइकाइनेसिस। आई होप इट इज गोइंग इनटू द हेड एंड हार्ट, है ना? दिमाग और दिल दोनों में जाना चाहिए। ओके, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा हो गया। अब वही होगा जो प्रोफेज में होता है, राइट? प्रोफेज में क्या होता है? आपको क्रोमोसोम्स दिखने लगेंगे, राइट? क्रोमैटिन आपका क्रोमोसोम्स बनने लगेगा, उससे स्पिंडल फाइबर को अटैच होना है, तो स्पिंडल फाइबर को भी बनना पड़ेगा, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। सिंस मियोसिस हो रहा है हम उसको मियोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन बोलेंगे। वही सब चीजें होंगी, न्यूक्लियोलस चला जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाएगा, right? So at the end of dikinesis, that tells you that prophase 1 has been completed, है ना? तो उसमें सब कुछ वही होगा, right? न्यूक्लियोलस चला जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप चला जाएगा, क्रोमैटिन्स आपको क्रोमोसोम्स की तरह दिखने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। एनिमल सेल अगर होगा
तो सेंट्रियोल्स आपका ऑपोजिट पोल में जाएगा, राइट, ताकि ऑपोजिट पोल में जाके वो स्पिंडल्स क्रोमोसोम से अटैच हो जाए। ओके, सो दिस इज डाइकाइनेसिस प्रोफेज 1। यहाँ तक किसी को कोई भी गिले शिकवे, दुख दर्द कुछ भी है? एनीथिंग इज देयर अप टू हियर? प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, इज इट क्लियर? यस, चलो, तो हमने खुशी खुशी सीख लिया है प्रोफेज 1। कूल। मियोसिस 1 का हम एक्चुअली क्या सीख रहे हैं? जल्दी जल्दी दिमाग में रन करो इसको। कैरियोकाइनेसिस सीख रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस में क्या सीख रहे थे? प्रोफेज 1 सीख रहे थे एंड वी आर सक्सेसफुली डन विथ इट। अब हम मेटाफेज 1 सीखेंगे, देन एनाफेज 1 सीखेंगे एंड फॉलोड बाय टीलोफेज 1 सीखेंगे। गॉचा है ना? बुझ लो पारी? चलो, तो मेटाफेज 1 की तरफ आगे बढ़ते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे मेटाफेज 1 की तरफ। अब क्या होगा देखो, हमारे पास जो क्रोमोसोम्स ने जीन को एक्सचेंज कर लिया वो है ना, क्यों गायब हो गए? वो तो है हमारे साथ, राइट? बस इतना हुआ कि वो सेपरेट हो गए हैं, वो साथ साथ अभी जुड़े हुए नहीं है। दे आर सेपरेटेड नाउ इन मेटाफेज 1। लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली। थोड़ा अटेंशन चाहिए, some more attention. Okay, now what will happen? The bivalent chromosome. Every time I say bivalent chromosomes, you should understand I am talking about homologous pair of chromosome. ठीक है? So the bivalent chromosome align on the equatorial plate. Is that clear? जो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 एक पापा से आया था, क्रोमोसोम नंबर 1 एक मम्मा से आया था, वही तो है होमोलोगस, जिसमें सेम सेम तरह के जीन्स थे, राइट? तो वो लोग अपना साथ साथ ज्वाइन होके इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। ओके, अगर हम ह्यूमन बीइंग का केस लेते हैं, आपको पता है आपके पास आपके सेल में कितने क्रोमोसोम्स है? 46। आपको पता ही है, बहुत बार मैंने रिपीट किया है पहले क्लासेस में, राइट? तो 46 है, मतलब कितने पेयर्स में इसको डिवाइड करते हैं हम? 23 पेयर्स, राइट? यस, सो हियर कितने क्रोमोसोम्स यू विल गेट? ऑफ कोर्स 23, एंड हियर मैम ऑब्वियसली 23, राइट? So here you will get 23 and the rest 23 will be here. Got it? So 23 pair of chromosomes will align at the equatorial plate. Is it clear? चलो, इसी के साथ थोड़ा रिकॉल करोगे? एकदम भूल जाओ किताब को, बुक को भूल जाओ, यहाँ पे स्टोर करो सब कुछ। माइटोसिस याद है सबको? मेटाफेज ऑफ माइटोसिस रिकॉल करो, क्या होता था वहां पे मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में? क्या होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनते थे? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता था वहां पे? वहां पे भी क्रोमोसोम अलाइन होते थे ना, लेकिन क्या वो 2 लाइन में होते थे? बिल्कुल नहीं। कितने लाइन में होते थे? बस एक लाइन में। मतलब पूरा 46 क्रोमोसोम आपका एक लाइन में अलाइंड होता था, whereas in meiosis 1 मेटाफेज 1 आपके होमोलोगस क्रोमोसोम एक लाइन में लग जाते हैं, है ना? एक यहाँ पे 23 लगेगा और एक यहाँ पे, सो यू गेट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब 23 पेयर्स अलाइंड एट द इक्वेटोरियल प्लेट। गॉट इट? यही से आपका सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ ना पैकाइटिन में, वो तो पहला डिफरेंस हो गया कि एक्सचेंज होता है ना? साइनेप्सिस होता है, एक्सचेंज होता है, जो आपको माइटोसिस में नहीं मिलता। दूसरा क्या? दूसरा ये मेटाफेज 1, जहां पे आपको पेयर्स में क्रोमोसोम मिलेंगे और यहीं से आप देखोगे कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा। देखना कैसे होगा, क्या होगा? अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे, है ना? द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल, है ना?
जो स्पिंडल बने हैं, स्पिंडल किससे बनते हैं बताओ? चैप्टर सेल याद है? स्पिंडल किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, याद है ना सब? तो आपका साइटोस्केलेटन्स याद है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, रिकॉल कर लेना आज उसको। तो ये आपका किससे अटैच होता है? जो हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रोमियर पे, उससे। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? जहां भी हो बोलो, वेर एवर यू आर सिटिंग। क्या है ये हुक लाइक स्ट्रक्चर? काइनेटोकोर, राइट? इस काइनेटोकोर से आपका स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। अब देखो फिर से बड़ा वाला डिफरेंस। माइटोसिस में क्या हुआ था? आपने देखा था दोनों काइनेटोकोर में दोनों तरफ से फाइबर्स अटैच थे, बट यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, है ना? यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम से बस एक ही तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, यहाँ पे भी देखो एक ही तरफ से अटैच्ड है, राइट? तो मैंने बोला था तब झगड़ा करो, टग ऑफ वॉर करो, है ना? तब वहां पे टग ऑफ वॉर हो रहा था, तो क्या हुआ था? दोनों तरफ से अटैचमेंट थी ना, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा था एंड क्रोमैटिड सेपरेट हो जा रहे थे। कैन यू रिकॉल? सिंस दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच थे, टग ऑफ वॉर हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, रोप वाला प्ले खेला है ना, दोनों साइड से खींच रहे थे। तो क्या हुआ फाइनली? सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है एंड क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। बट इस केस में देखो, करो टग ऑफ वॉर, ये वाला इसको खींचेगा, बस इसी को खींच सकता है ना? तो क्या होगा? ये किधर जाएगा? ए की तरफ जाएगा या बी की तरफ जाएगा बताओ? अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, ये किधर जाएगा? इसको कौन खींच रहा है? इधर वाले पोल खींच रहे हैं, ए की तरफ जाएगा या बी की तरफ जाएगा? सोचो। ए की तरफ, ऑफ कोर्स, बिकॉज बस ए की तरफ ही ये अटैच्ड है, तो ये उसको पुल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या होगा? दिस entire set of 23 chromosome will go towards A pole, and this entire set of 23 chromosome will go towards B pole. तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। अभी तक वो साथ साथ दिख रहे हैं, लेकिन मेटाफेज 1 के बाद जब एनाफेज 1 में जाएगा तो क्या होगा? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये 1 यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। टग ऑफ वॉर इज फाइनली डन, कंप्लीटेड, राइट? तो अब हम सीखे एनाफेज 1, सीखे? सो दैट इज मेटाफेज 1, जब आपके होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलाइन हो चुके थे। अब वो खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, राइट? होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे, तो कैसा दिखेगा आपका? कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? देखो इसको, यहाँ पोल्स के पास वो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? पूरा पूरा क्रोमोसोम आ जाएगा ना, पूरा पूरा क्रोमोसोम आ जाएगा, क्योंकि हमने क्रोमोसोम को खींचा है, हमने पूरे पूरे क्रोमोसोम्स को खींचा है, राइट? तो पूरा क्रोमोसोम आ गया, यस। तो बताओ यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स आए? यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स आए? एक पोल में कितने क्रोमोसोम? जल्दी बताओगे, जल्दी बताओगे? एक पोल में कितने? ऑब्वियसली कितने? 23, 23। कुछ समझ आ रहा है भेजे में? हाँ। तो अब हो गया एनाफेज, जहां पे आपको पोल्स पे 23, 23 क्रोमोसोम मिल गए, राइट? उसके बाद फाइनली क्या है? टीलोफेज 1। एंड टीलोफेज 1 क्या होता है? प्रोफेज का उल्टा। तो जितना कुछ प्रोफेज में खोया सबको पा जाओ। क्या क्या प्रोफेज में खोया था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खो दिया, चलो चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देते हैं, राइट? फिर न्यूक्लियोलस खो दिया, कोई बात नहीं, चलो न्यूक्लियोलस बना देते हैं। फिर क्रोमैटिन खो गया, कोई बात नहीं, क्रोमोसोम को हम फिर से क्या बना देंगे? क्रोमैटिन बना देंगे। तो ये आपका कौन सा फेज हो गया? टीलोफेज 1। व्हाट इज दिस फेज? टीलोफेज 1।
where everything will reappear. ओके, ये आपका हो गया टीलोफेज 1. इतना होने के बाद क्या होगा? आपने सक्सेसफुली कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर दिया. कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. अब आप साइटोप्लाज्म को डिवाइड करोगे. डिवाइड करोगे ना? करोगे, बिल्कुल करोगे, राइट. डिपेंडिंग ऑन ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है. अगर एनिमल सेल हुआ तो क्या करोगे? बाहर से अंदर की तरफ डिवाइड होता है, सेंट्रीपिटल. अगर प्लांट सेल होता तो अंदर से बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल. क्यों? क्योंकि सेल वॉल आप डिग्रेड नहीं कर सकते. बाहर का लेयर सेल वॉल होता है ना, तो उसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है. तो प्लांट के केस में हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं. सब पढ़ाया हुआ है, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन ये प्लांट है कि एनिमल है, अपना साइटोकाइनेसिस आराम से कर लेगा और आपको 2 सेल मिल जाएंगे. और इन 2 सेल में कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या हो गया है? 23 क्रोमोसोम्स मिल चुका है आपको. एंड मियोसिस ने अपना रंग दिखा दिया. इसने क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर दिया. कितने से? हाफ से. 46 से स्टार्ट किया, कितना मिल रहा है आपको? 23, है ना. तो ये हो गया आपका मियोसिस 1. क्या सेल साइकिल कंप्लीट हो गया? हुर्रे! ऐसा नहीं ना, सेल साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. पिक्चर अभी बाकी है ना. जब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा, पूरा कंप्लीट सेल साइकिल नहीं होगा, राइट. तो इसके बाद की कहानी स्टार्ट करते हैं फिर, राइट. मियोसिस 1 खत्म हो चुका है. याद है ना सबको सेल साइकिल सीक्वेंस? क्या सीक्वेंस था बताओ जल्दी से. व्हाट इज द सीक्वेंस? पहले आपको क्या मिलेगा? इंटरफेस. ऑब्वियसली आपको पता है G1S and G2 होगा. एंड इसके बाद आपका मियोसिस 1 था जो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर आपका कैरियोकाइनेसिस था एंड साइटोकाइनेसिस था. इसके प्रोडक्ट में आपको गिफ्ट क्या मिला है? इसने आपको क्या दिया गिफ्ट में? 2 सेल्स दिए हैं जिसमें एक एक के पास कितना क्रोमोसोम है? ह्यूमन बीइंग का केस ले रहे हैं, 23 क्रोमोसोम्स है. पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त, है ना. ये ट्रेलर था राजेश सिंह. Each one will go for meiosis 2. सॉरी, यहाँ पे meiosis 2 लिखना चाहिए, राइट. हाँ, each one will go for meiosis 2. तो हर एक meiosis 2 में जाएगा, मतलब हर एक एक बार और कैरियोकाइनेसिस करेगा एंड साइटोकाइनेसिस करेगा. एंड उसकी हेल्प से आपको एक एक सेल से 2 और सेल मिलेंगे. एंड इसलिए तो हम बोलते हैं कि मियोसिस हमें कितने सेल्स देता है? 4 देता है ना. क्योंकि आप 2 बार डिवीजन कराते हो ना. दैट्स व्हाई मियोसिस गिव्स यू 4 हैप्लॉइड सेल्स, राइट. तो चलो मियोसिस 2 सीखेंगे, ठीक है. उसके पहले एक रिकॉल कर लो. एक बार रिकॉल करो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. रिकॉल करो. प्रोफेज 1 में क्या होता है? ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे फेजेस हमने सीखा है. LZPD², है ना. जिसमें क्या हुआ था? आपके क्रोमोसोम्स आपको दिखने लगे. मेटाफेज 1 में क्या हुआ? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया. स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए. एनाफेज 1 में क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया. 23 यहाँ मिलेगा, 23 यहाँ मिलेगा. टीलोफेज 1 क्या होगा? टीलोफेज 1 में आपको 2 आराम से इसमें न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह बन गया. एंड इसके बाद का प्रोसेस इन्होंने दिखाया नहीं है. इसके बाद क्या होगा? आपको 2 सेल्स अच्छे से मिल जाएंगे. इन्होंने एक ही साथ दिखा दिया. इन्होंने आपको एक ही साथ दिखा दिया कि हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया और आपको टीलोफेज 1 के बाद 2 सेल्स मिल गए. इन 2 सेल्स में आपको हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम है, ठीक है. टीलोफेज 1 मतलब मियोसिस 1 खत्म. अब आपका स्टार्ट होने वाला है कहानी किसका? मियोसिस 2 का, ठीक है. तो हमने पढ़ लिया मियोसिस 1. हम कहानी स्टार्ट करने वाले हैं मियोसिस 2 की, where every cell has 23 chromosome,
सिंस वी आर टेकिंग केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, दोनों ही मियोसिस 2 करेगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस करेगा, राइट, एंड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसके कैरियोकाइनेसिस को क्या बोलोगे? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, राइट? समझ रहे हो ना? तो जैसे ही 2 लिखा रहेगा आप समझ जाओगे कि ये मियोसिस 2 है। यस। तो अब सोचना है कि क्या इसका प्रोफेज LZPD स्क्वायर करेगा? क्या इसका प्रोफेज LZPD स्क्वायर करेगा? इल्ला, नहीं करेगा। ये प्रोफेज 2 है। दिस विल नॉट डू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। समझे? सिर्फ मियोसिस 1 का प्रोफेज करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। तो इसका प्रोफेज कैसा? इसका प्रोफेज माइटोसिस के जैसा। इट इज डिट्टो 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 सेम एज माइटोसिस। ओके, इट इज कंप्लीटली सेम एज माइटोसिस। जो भी माइटोसिस में हुआ था, सेम थिंग विल हैपन हियर इन मियोसिस 2। ओके, सो मियोसिस 2। अब बोलोगे मैम इसको माइटोसिस से क्यों नहीं बोल दिए? फिर अगर माइटोसिस बोल देते तो कंफ्यूजन नहीं होता क्या? माइटोसिस अगर बोलते तो कंफ्यूजन होता कि नहीं होता? राइट, सिंस ये मियोसिस का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस 1 के बाद हो रहा है, तो इसका नाम तो हम मियोसिस से देंगे ना। यू विल गिव द नेम एज मियोसिस, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द नेम एज मियोसिस 2। बट if you see the function will be same as mitosis. Clear? फंक्शन आपका बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 मतलब मियोसिस 1 में आपका टीलोफेज 1 खत्म हुआ, टीलोफेज 1 खत्म हुआ। As soon as the telophase 1 gets finished, उनको साइटोकाइनेसिस करना है और फिर उसको किस में जाना है? मियोसिस 2 में जाना है। एक्चुअली उसको किस में जाना है? एक्चुअली इसको किस में जाना है? सोचो तो। एक्चुअली उसको प्रोफेज 2 में जाना है ना? यस राज, एक्चुअली इसको कहाँ जाना है? प्रोफेज 2 में जाना है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनो। अगर इसको प्रोफेज 2 में जाना है तो इसको फिर से सब कुछ वही करना पड़ेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खत्म करो, न्यूक्लियस को खत्म करो, क्रोमैटिन को क्रोमोसोम में बनाओ, सब कुछ करना पड़ेगा ना? यस और नो? तो इस काम को कम करने के लिए, टू रिड्यूस दिस वर्क, क्या होता है उनमें? जब आपका टीलोफेज 1 खत्म हुआ ना, तो उनका जो क्रोमोसोम्स है वो पूरा क्रोमैटिन में नहीं कन्वर्ट होता है। उनका क्रोमोसोम पूरा क्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको अभी फिर से प्रोफेज 2 में जाना है। तो अपने काम को थोड़ा कम करने के लिए व्हाट दे डू इज, वो पूरा खुलते नहीं है, पूरा डीकॉन्डेंसेशन नहीं होगा, क्रोमोसोम्स पूरा क्रोमैटिन नहीं बनता। ठीक है, वो थोड़ा थिक रहेंगे, थोड़े थोड़े थिक ही रहेंगे। उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? थिक रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको तुरंत प्रोफेज 2 में जाना है और फिर से क्रोमोसोम ही बनाना है, फिर से उनको क्रोमैटिन से क्रोमोसोम ही बनाना है। ठीक है, इसलिए वो पूरा क्रोमैटिन नहीं बनते। मैं इसलिए इस पॉइंट पे बहुत एम्फेसिस दे रही हूँ क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा है एक लाइन, वो फाइंड आउट करना जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम टेलिंग नाउ, ट्राई टू फाइंड आउट दिस इन एनसीईआरटी। ठीक है, कभी भी वो पूरा मैक्सिमली एक्सटेंड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पूरा तुरंत प्रोफेज 2 में जाना है। दैट्स वाई वो क्रोमैटिन में पूरा कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि प्रोफेज 2 में तो फिर से क्रोमोसोम बनना है उनको। ठीक है, सो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में थोड़ा सा तो गैप होगा, कुछ तो सांस लेंगे वो, राइट? जैसे मियोसिस 1 खत्म हुआ, 2 सेल बन गए, अब इनको मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में जाना है, तो थोड़ा सा तो गैप होगा, टाइम का थोड़ा तो गैप होगा।
So there is small gap between meiosis 1 and meiosis 2 and that is called as, क्या बोलते हैं उसको? Interkinesis. What do you call it? Interkinesis. You call it as interkinesis. So the gap between meiosis 1 and meiosis 2, small gap between this is called as interkinesis. उसके बाद आपका meiosis 2 होगा, प्रोफेज 2 सेम होगा. प्रोफेज 2 में क्या होगा? आपके 2 सेल्स हैं, है ना, क्रोमोसोम बन जाएंगे. वो क्रोमोसोम मेटाफेज 1 में जाएंगे. मेटाफेज 1 में क्या होगा? सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स थे? 23 क्रोमोसोम्स थे. सारा 23 क्रोमोसोम will align at the equator, right? स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से. What will happen at anaphase? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा. What will happen at telophase? फिर से उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह बन जाएगा, क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन बन जाएंगे. एंड आफ्टर टेलोफेज 2 क्या होगा? साइटोकाइनेसिस एंड आपको 2 सेल मिल जाएगा. ठीक है, तो एक सेल से आपको 2 सेल मिला. ऐसा वाला सेल आपको 2 मिला था ना. meiosis 1 के बाद आपको कितने सेल्स मिले थे? You had got 2 cells, right? Yes or no? So each cell will go meiosis 2 and each will give you 2 each. Each will give you 2 each. So total finally आपको कितने डॉटर सेल मिले? फाइनली कितने डॉटर सेल मिले? 4. एंड चारों में कितने क्रोमोसोम्स है? 23. So we had started from where? 46 क्रोमोसोम्स लिया था, हमें कितने क्रोमोसोम्स मिले? 23. This is the reason why meiosis is called as what? Reductional division. सिखाया है ना मैंने पहले. meiosis को क्या बोलते हैं? Reductional division. क्यों? क्योंकि it reduces the chromosome number by half. कोई डाउट है? पूछो. So this is your chapter cell cycle and cell division. क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आप. MTG का क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व करना फिर से. If any doubt is there, you can ask. There is any doubt? Yes, no? Or else? Thank you so much. हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे and that is living world. ठीक है, आप इसको सॉल्व करो. Any doubt is there? You can let me know. No doubt is there? चलो ठीक है then. See you in the next class.